Hello, dear learners. Hope you are doing well and having fun. So, here we are going to start with the paper 3 of history to 2014 जून. Yes, जून और दिसंबर में ऐसे एग्ज़ाम होते हैं हर साल. तो अभी पहले पैटर्न ऐसा था कि 50 क्वेश्चंस पेपर 2 में रहते थे, 75 पेपर 3 में, और अभी ऐसा है कि सिर्फ 100 क्वेश्चंस रहते हैं. तो हम पहले के पेपर सॉल्व कर रहे हैं, इसीलिए पहले का पैटर्न फॉलो करेंगे. तो इस क्वेश्चन पेपर में है 75 क्वेश्चंस, जो है 150 मार्क्स के लिए. ठीक है, तो अभी हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. द वेरी फर्स्ट इज द पैसेज में है, इन द मिडल ऑफ 4th century of the Christian era, something resembling a volcanic eruption took place in the history of the human race. The Hunas, like a veritable stream of lava, issued from their homeland on the northern shores of the Caspian Sea and spread over Europe and Asia. Homeless and lawless, they rode their horses, awake and asleep. Their fierce yells spread terror wherever they were heard. They engaged all the civilized people of the world in a fearful cataclysmic war, and wherever they could, they killed, destroyed, burned, and devastated with demoniac ruthlessness. In Europe, Attila the Hun brought about the downfall of even the powerful Roman Empire. ठीक है, और ये कब स्टार्ट हुआ? मिडल ऑफ द 4th century. ये भी नोटेबल है. About AD 455, the Hunas began to enter India. Emperor Skandagupta drove them back by a supreme effort. Skandagupta. 12 years later, he died. The outpost of empire, already weak, could offer no resistance. The barbarian hordes, after passing through Persia and destroying the Kushan rulers of the northwest, began to pour into India. A war of succession appears to have followed the death of Skandagupta, weakening the empire in hour of its danger. Next in order of succession, 5 emperors, including Narsimhagupta, Baladitya, between AD 500 and 570, held precarious sway over parts of the empire, which, in spite of the decency, was still a name to conjure with. Many parts of the empire outside the bounds of the compact core of the empire, province of the empire, the Maitraka practically thrived of his elegance on the death of Skandagupta. By AD 512, the Hunas under Toramana overran North India up to Iran in the Sogar district of Madhya Pradesh. Toramana's son Mihir Kula, a veritable terror, spread fire and carnage from Punjab to Gwalior, and by AD 525 became the master of vast territory. Northern India soon recovered from the shock of barbarian impact and resisted Mihir Kula. तो ये एक पैसेज है, बट ये पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पर नहीं है. ये एक बात ध्यान में रखो, ये उसके अराउंड जो हो रहा था उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन है, बट पैसेज के रिगार्डिंग क्वेश्चंस नहीं है. ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, वन हु वॉज द इम्पेरियल रूलर ऑफ द रूल ऑफ इंडिया. See, who was the imperial ruler of India in the middle of 4th century AD? 4th century AD माने कि जो 400 वाला जो है, देखो यहाँ पे मिडल ऑफ 4th century बोला है, तो ये आपको क्या लगेगा कि यहाँ पर उन्होंने स्कंदगुप्ता का नाम बताया, इसीलिए स्कंदगुप्ता होगा. बट स्कंदगुप्ता बाद में आए. ठीक है, स्कंदगुप्ता बाद में आए. यहाँ पर उन्होंने क्या बोला है कि स्कंदगुप्ता थे, उन्होंने ड्रोव किया हुनास को, बट वो ऐसा नहीं बता रहे. समुद्रगुप्त का जो राइन है वो मिडल ऑफ 4th century में आएगा. ठीक है, और ये जो है स्कंदगुप्ता, ये 455 यानी कि ये 5th century वाले हैं, मिडल ऑफ 5th century. और जो यहाँ पर उन्होंने 4th century बोला है, इसलिए वो समुद्रगुप्त आएगा. सेकेंड, द हुनास वे अकम्पनीड इन इंडिया बाय विच अदर सेंट्रल एशियन ट्राइब्स. कौन से थे ये? ऑप्शन बी गुर्जरास. यस, ऑप्शन बी गुर्जरास. आगे, हु ओवरथ्रू द हुना पावर फ्रॉम मालवा. अभी ये तो पैसेज में दिया ही नहीं है, बट ये नॉलेज रहना चाहिए, तभी आप ये सॉल्व कर सकते हैं. किसने किया था ये थे यशोधर्मन. यस, यशोधर्मन कौन से डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं? मुझे कमेंट्स में बताओ. पैसेज है रिलेटेड, बट उसमें आपको आंसर्स नहीं मिलेंगे. मैं बार बार ये चीज़ रिपीट कर रही हूँ. आगे, फोर्थ, हु ड्रोव मिहिर खुला आउट ऑफ द गंगा वैली. यहाँ पर बताया है कि मिहिर खुला का पहले बहुत बड़ा वास्ट टेरिटरी था, फिर उसको बाहर निकाल दिया गया. रिकवर्ड फ्रॉम द शॉक ऑफ बारबेरियन इम्पैक्ट एंड रजिस्टर्ड मिहिर खुला. तो ये किसने निकाला है? अभी ये आपको क्वेश्चन पूछा है, तो इसका आंसर है नरसिम्हा गुप्ता वन. ठीक है, यहाँ पर नाम दिया है उनका, बट उन्होंने ऐसा बोला नहीं है ना कि किसने निकाला है. फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट. तो अभी यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, तो फिफ्थ का आंसर डायरेक्टली बता देती हूँ. द डेथ ऑफ स्कंदगुप्ता कोइंसाइडेड विद द डेथ ऑफ गुप्ता एम्पायर. नहीं, स्कंदगुप्ता का डेथ हुआ था 512 में, बट बट जो अपना गुप्ता एम्पायर है वो स्टिल चल ही रहा था. देखो यहाँ पर 500 570 तक चल ही रहा था.
जो उनके बाद के सक्सेसर्स थे जैसे नरसिम्हा गुप्ता, बाल आदित्य, तो ये उस टाइम पर भी चल ही रहा था, बस वीक हो गया था एम्पायर और वो डिवाइड हो चुका था। ओके, ये हमारा पैसेज रिलेटेड है और ये सेशन पूरा एक्टिव रहेगा, इंटरएक्टिव रहेगा। मुझे आंसर्स भी चाहिए कमेंट्स में, ताकि मुझे समझ में आए कि आप लोग सीरियसली देख भी रहे हो या नहीं। सिर्फ सुनकर पीछे छोड़ना ही नहीं है, इसका प्रॉपर रिवीजन भी करो। इससे रिलेटेड टॉपिक आप बुक्स में पढ़ो, क्योंकि बुक्स में पढ़ना ज़रूरी है, तभी ये रिटेन होता है। PYQs क्यों देखते हैं? ताकि हमें पता चले कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। बट अगर आप PYQ देखकर सिर्फ एग्जाम में चले जाएंगे तो वो कुछ फ़ायदे का नहीं है ना, बुक्स भी तो पढ़नी ज़रूरी होती है। 6th, रामकृष्ण गोपाल भंडारकर हु वॉज अ पायनियर ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी इन इंडिया बिलोंग्स टू। रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, जो अपने RG भंडारकर है ना, यस, जो साइंटिफिक ओरिएंटोलॉजिस्ट है, वो कौन से स्कूल से बिलोंग करते हैं? हिस्टोग्राफी, रैंक के स्कूल, यस, रैंक के, ये काफ़ी फेमस है हिस्टोग्राफर, ये रैंक के, तो उनके स्कूल से बिलोंग करते हैं। ये रैंक के स्कूल एक हिस्टोग्राफी का स्कूल है उससे। तो RG भंडारकर कौन थे? साइंटिफिक ओरिएंटोलॉजिस्ट। और इनकी बुक्स का नाम, मैं पूरे जितने भी बुक्स के नाम हैं, जितने ऑथर्स है, मैं वो बोलती जाऊँगी, क्योंकि एग्जाम में कैसे है ना, बुक्स एंड ऑथर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप हो सके ना तो जितने भी मैं बुक्स एंड ऑथर्स यहाँ पे बोलूँगी भी, मैं लिख कर भी दे देती हूँ इस पर मैं बोलूँगी, तो आप वो क्या करना, साथ में लिख कर रख लेना अपने पास में, और रिविजन में उसको रिवाइज करना, क्योंकि हर साल बुक्स एंड ऑथर्स के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर उनके 2 बुक्स जो काफ़ी फेमस है उसके नाम लिख दिए हैं। मैं ऐसे ही पूरे इसमें प्रोवाइड भी कर दूँगी बुक्स के नाम, बट आप भी आपके पास में एक रफ वर्क या नोट्स के हिसाब से बना कर रखो, ये हेल्पफुल है आगे। ठीक है, 7th, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, सुआन कल्चर, नेवासियन कल्चर, बगोर कल्चर, कोल्डिवाहा कल्चर, मिडल पैलियोलिथिक, लोअर पैलियोलिथिक, नियोलिथिक, अपर पैलियोलिथिक। अभी आपको इसमें से अगर एक भी पता होगा तो आप ऐसे हिंट्स लगा सकते हैं, ट्रिक्स लगा सकते हैं, राइट। तो हमें सोन कल्चर का पता है, क्या है सोन कल्चर का, वो एक लोअर पैलियोलिथिक कल्चर है। तो A का 2 किसमें, ओके, 2 ऑप्शन है A के 2 के लिए। तो उसके बाद में हमें और भी पता रहना चाहिए। नेवासियन कल्चर क्या होता है? नेवासियन कल्चर एक मिडल पैलियोलिथिक कल्चर है। तो B का 1 किस में है, ओके, दोनों भी मैच करते हैं, A का 2 और B का 1 दोनों भी इसमें सेम है। बागोर कल्चर, बागोर कल्चर क्या है, C का 4 अपर पैलियोलिथिक कल्चर है। और कोल्दिवाहा, तो हमारा आंसर है 3 D, कोल्दिवाहा है नियोलिथिक कल्चर। अब ये देखो, सोअन कल्चर का है शिवालिक हिल्स में, पाकिस्तान, वो जो सोअन वैली है उसके पास में। नेवासियन कल्चर माने कि नेवासा, जो महाराष्ट्र में, अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। बागोर का है भिलवाड़ा, राजस्थान में, एक लार्जेस्ट मेजोलिथिक साइट भी है ये बागोर। और उसके बाद में कोल्दिवाहा है बेलन रिवर, जो है प्रयागराज में आता है, वहाँ पर UP में, उत्तर प्रदेश में, तो वो कोल्दिवाहा वहाँ पर है। ठीक है, आगे, व्हाट इज़ द रेशो ऑफ हरप्पन वेट? ये है 1 2 3 4 6, मैंने ऐसे ही लर्न किया था 1 2 4 6 इवन नंबर्स पर। 1 तो कॉमन है, ये तो मैंने रख लिया था ध्यान में, 2 4 6 रहता है, ये मैंने बाद में लर्न किया था। तो आप भी ऐसे ही रखो 2 4 6 इवन नंबर्स, 2 के गैप से। 9th, विच ऑफ द फॉलोइंग चालकोलिथिक, अभी यहाँ पर कौन सी है, चालकोलिथिक बोलिए। चालकोलिथिक साइट्स हैव गिवन द एविडेंस ऑफ यूज ऑफ कॉपर बट नॉट स्टोन टूल्स। कॉपर है बट स्टोन नहीं है, ये है ऑप्शन C, आहार, आहार कल्चर, ऑल्सो नोन एज बानस कल्चर, जो कब से कब तक है, 300 से 3000 से, सॉरी ये चल नहीं रहा है प्रॉपरली, ठीक है, एक मिनट, 3000 से 1500 BC, बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, ये सारे जो कीलुंड का था और नवदोतली है, ये भी सारे चालकोलिथिक साइट्स ही है। बट आहार के बारे में पूछा है यहाँ पर कि यूज़ ऑफ कॉपर बट नो स्टोन टूल्स। आहार के टाइम पर तो कॉपर टूल्स आने स्टार्ट हो गए थे और स्टोन टूल्स भी थे, यस, बाकी जगह पर स्टोन टूल्स भी मिलते थे। आगे 10th, अंडर हुज लीडरशिप द बैटल ऑफ 10 किंग्स मेंशन्ड इन द ऋग्वेदा वाज फॉट अगेंस्ट सुदासा। किसके लीडरशिप के अंडर हुआ था ये? विश्वामित्र, यस, ये एक सेज थे विश्वामित्र। और ये बैटल ऑफ 10 किंग्स कौन से रिवर पर हुआ था? रिवर परशुनी। कौन सी रिवर थी ये? रिवर परशुनी। उसको और एक कौन सा नाम है? रावी रिवर। सो विश्वामित्र थे। ठीक है, आगे ये किसके बीच में होता है वैसे? किंग ऑफ भारतास एंड कॉन्फेडरेशन ऑफ ट्राइब्स, सुदासा। और इसमें विक्ट्री कौन हुई थी? वन सुदास, जो किंग ऑफ भारतास थे, उनकी विक्ट्री हुई थी, ये विक्ट्री हुए थे। आगे ये इंटरेस्टिंग है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट?
करेक्ट पूछा है यहाँ पर सभा और समिति के रिलेटेड. सभा हैज़ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ जनरल क्लास वाइल समिति हैज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इलाइट क्लास. सभा हैज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इलाइट क्लास, समिति हैज़ जनरल क्लास. बोथ सभा एंड समिति इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स इन समिति ग्रेटर देन नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इन सभा. तो हमारा आंसर है ऑप्शन बी. अभी ये ध्यान में नहीं रहता है, बहुत बार एग्जाम में आता है ना तो कन्फ्यूजन होता है. सभा इलाइट, सपोज कैसे याद रखो, लोकसभा और राज्यसभा होता है, ठीक है. तो हमारा राज्यसभा जैसे होता है ना इलाइट क्लास, तो इसको ऐसे ही कंसिडर करो. सभा माने इलाइट, जो हाई क्लास लोग रहते हैं बड़े बड़े, उनके रिलेटेड जो होती है वो इलाइट क्लास वाली सभा. और फिर जो समिति है वो जनरल क्लास. हाँ, जैसे फ्रीडम के टाइम पर समितिज नहीं बनती थी क्या, तो वो जनरल जो लोकल पीपल थे, वो आम लोग जो रहते थे उनकी रहती थी. तो वैसे ही समिति माने कि आम लोगों की. अभी भी कैसे होती है ना समितिज, ऐसे अपने हर रिलीजन कास्ट वाले अपनी अपनी समितिज बनाते हैं, वो जनरल लोग रहते हैं. तो वही हिसाब से आप याद रख सकते हैं. 12th गिवन बिलो अभी असर्शन एंड रीजनिंग. Bimbisar was the earliest of the Indian kings to stress the need for efficient administration. The ministers of Bimbisar were handpicked and he was reputed never to ignore their advice. अभी क्या बोलते हैं ना, असर्शन रीजनिंग में कैसे पूछना, असर्शन पहले अपना असर्शन पूछना, फिर उसके अंदर अगर अपने वाई लगा दिए या फिर उसको रिलेटेड अगर टॉपिक रहा, मतलब बिम्बिसार यहाँ पर है, बिम्बिसार रीजन में भी है और ये बिम्बिसार की रिलेटेड ही बात है, ऐसे देखते तो फिर वो हो जाता है करेक्ट. मतलब कि ए और आर दोनों भी ट्रू रहते हैं और आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. अगर ये दोनों रिलेटेड है तो ही, ये दोनों रिलेटेड है तो ही. वैसे बिम्बिसार कौन थे? बिम्बिसार मगध के रूलर थे जो पैट्रोनेज किया था उन्होंने बुद्धिज्म, जैनिज्म, इनफैक्ट वो हर रिलीजन को ही मानते थे. हरियंका डायनेस्टी से थे ना वो, यस, सेकेंड वाली जो डायनेस्टी. और इन्होंने फर्स्ट थे ये जो कि परमानेंट स्टैंडिंग मिलिट्री जिन्होंने रेडी की थी, बिम्बिसार. इसीलिए इनका एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी इफिशियंट माना गया है. अशोका के प्रीडेसर्स थे नहीं, मतलब चंद्रगुप्त वाले जो, उनके पहले नंदा आते हैं फिर चंद्रगुप्त आते हैं. तो ये ऐसे ही मगध वाली जो डायनेस्टी है. आगे 13 द प्रोपोर्शन ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम सैलरी ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज मेंशन्ड इन अर्थशास्त्र. अर्थशास्त्र किसका है? कौटिल्य का है. तो इसमें बताया गया है 48,000 मैक्सिमम है और 60 रुपीज़ मिनिमम है. यस, 48,000 मैक्सिमम और 4800 मैक्सिमम है और 60 मिनिमम है, ठीक है. और ये किस में बताया गया है? फर्स्ट जो चैप्टर है अर्थशास्त्र में, उसमें बताया गया है कि नीड फॉर लॉ, इकोनॉमिक्स एंड गवर्नमेंट. तो उसमें ये बताया गया है सैलरी के बारे में. ओके, अब मुझे ये बताना कमेंट्स में अर्थशास्त्र में टोटल कितने पार्ट्स है. यस, कितने पार्ट्स आते हैं अर्थशास्त्र में, ये मुझे कमेंट्स में बताना. आगे 14 गिवन बिलो असर्शन एंड रीजनिंग. सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, हाँ मेरा ही डॉग है, वो थोड़ा इरिटेट हो रहा था. आगे assertion and reasoning. 14th trading economy began to flourish during the time of Buddha. The Jainas largely entered into trade, living, agriculture. ओके, तो इन्होंने क्या बोला है कि ट्रेडिंग बुद्धा के टाइम पर फ्लरिश हुआ था. एग्जैक्टली, क्योंकि बुद्धा और जैन जो महावीर आते हैं वो एक ही अप्रॉक्स टाइम पर आते हैं, तो इसीलिए. और जैनिज्म में उन्होंने एग्रीकल्चर के, मतलब जैसे एग्रीकल्चर में जीव मरते हैं, वो जैसे अर्थवर्म्स वगैरह मर जाते हैं, तो अहिंसा बोला गया है. इसीलिए जैनिज्म में एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करना थोड़ा सा मना करते हैं. तो इसीलिए वो जैनिज्म वाला, तो रीज़न वाला हमारा पार्ट सही है, ठीक है. तो हमारा आंसर है ऑप्शन ए. उनके टाइम पर ही ट्रेडिंग इकोनॉमी फ्लरिश हुई, क्योंकि दोनों का कंटेम्प्रेरी आते हैं वो ऑलमोस्ट. तो इसीलिए समझा. अभी जैनिज्म में बोलते भी है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस नहीं करते हैं बहुत से लोग, अभी भी नहीं करते हैं, तो वो भी रीज़न है उनका. 15 विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स इज क्लेम टू हैव चेक द मिक्सचर ऑफ वर्नास. ये थे हमारे गौतमीपुत्र सतकर्णी. काफ़ी एफिशिएंट रूलर है, इंपॉर्टेंट है, ग्रेटेस्ट है, और ये 23rd थे. यस, गौतमीपुत्र सतकर्णी जो सातवाहन डायनेस्टी के 23rd रूलर बने. और इन्होंने मतलब हमारा जो वर्ना सिस्टम है वो कौन से बुक में मेंशन है, वो है 4 वर्नास वाला जो सिस्टम है, ये पुरुष सूक्ता, जो ऋग्वेदा का पार्ट है पुरुष सूक्ता, उसमें मेंशन किया गया है, ठीक है. और उन्होंने ही ये मिक्सचर चेक किया था ऑफ वर्नास. आगे कैपिटल, किंगडम एंड कैपिटल. लिस्ट 1 में किंगडम है, फिर कैपिटल है. कलिंगा, अवंती, असाका, सोवीरा, रोरुका, पोतना, माहिष्मती, दंतापुर. अभी अवंती का माहिष्मती है जो मध्य प्रदेश में आता है. बीका 3 कहाँ पर है? 2 ऑप्शंस में. और फिर असाका जो असमा का, जो हमारे महाराष्ट्र में, प्रेजेंट डे महाराष्ट्र में है, पैठन प्रतिष्ठान वो वाला एरिया, उसका कैपिटल था पोतना. तो सी का 2 कहाँ पर है? ऑप्शन डी. तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, जिसमें B3 है और C2 है. बाकी कलिंगा का दंतापुर और सोवीरा का रोरुका, ठीक है. 16 का आंसर है डी.
आपके कन्वीनियंस के लिए कर लेंगे। इसको हम दे देंगे कलिंगा का 4, अवंती, माहिष्मती, असाका, पोतना और सोविरा, रोरुका। कभी अगर एग्जाम में ऐसा कुछ नया आया तो डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आगे फिर से मैच द पेयर्स, टाइप ऑफ स्टोन एंड मॉन्यूमेंट्स, ग्रेनाइट्स, रेड सैंडस्टोन, शिस्ट एंड सैंडस्टोन। तो उसके बाद में मथुरा, सारनाथ, महाबलीपुरम, बमियन। तो इसके लिए ग्रेनाइट महाबलीपुरम में जो वो 2 रॉक्स नहीं के बड़े बड़े जिसमें गंगा का डिस्टेंस बताया गया है वो वाले, तो ए का 3 ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी 17th का। मुझे भी ऐसे बहुत ज़्यादा नॉलेज है ऐसा नहीं रहता है। आपको अगर कुछ चीज़ें पता है तो वो इतना कॉन्फिडेंस से पता करो कि आपको ये रहना ही चाहिए कि भाई मेरे को पता है ये चीज़ सही है, मुझे पता है ये चीज़ सही है, तो ये वैसे ही रहेगी। मुझे ग्रेनाइट का महाबलीपुरम पता था और 17 का आंसर डी ही है, ये भी मुझे पता है, क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी नहीं दिया ना कन्फ्यूजन होने के लिए। जो चीज़ें पता है वो इतने अच्छे से पता करो कि उसको कोई चैलेंज ही ना कर सके। ये स्ट्रैटेजी रहती है एक अच्छे स्टूडेंट की। ग्रेनाइट, महाबलीपुरम, स्टैंडस्टोन, मथुरा में स्टैंडस्टोन काफ़ी फेमस है। जो बुद्धा के जो इमेजेस बनते थे आगे, जो तक्षशिला और बुद्धा के जो मथुरा में बनते थे, तो मथुरा में रेड स्टैंडस्टोन वाले इमेजेस बनते थे। शिस्ट बमियन और स्टैंडस्टोन सारनाथ, ठीक है, सारनाथ। 18th, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट डिस्क्राइब्स द करप्ट प्रैक्टिसेज ऑफ द कपिलिकास, पाशुपतास एंड बुद्धिस्ट। तो ये है माता विलास प्रशंसना, ठीक है। और ये किसने लिखी है? महेंद्र वर्मन। ये एक एक्ट है जो महेंद्र वर्मन कौन थे? पल्लवा डायनेस्टी वाले महेंद्र वर्मन, वर्मन आता है ये। महेंद्र वर्मन 1 जो पल्लवा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। तो इसमें ना एक ऐसे अलग अलग सेक्ट्स के लोग रहते हैं और एक भिक्खू रहता है, मतलब बेगर रहता है, फिर एक शैविज्म फॉलो करने वाले होते हैं। इन सब के बीच में एक आर्ग्यूमेंट होता है कि वो जो बेगर रहता है ना, उसका एक पॉट रहता है, वो किसने तो भी लेके चले जाता है, उसका मतलब चोरी हो जाता है। तो वो जो एक भिक्खू रहते हैं, बुद्धिस्ट रहते हैं, उनके ऊपर वो आरोप करता है कि आपने मेरा पॉट ले लिया है। तो वो बोलता है नहीं। पूरा उनका डिबेट होने के बाद में एंड में एक डॉग लेकर आता है वो पॉट। तो ऐसी स्टोरी है, फन एक्ट है ये, वन प्ले फन एक्ट है ये, ऐसा बोलते हैं इसे, ठीक है। वन एक्ट फन समथिंग सटायर ऐसा बोला गया उसको। 19, द पदिरी पट्टू इज द कलेक्शन ऑफ पोएम्स इन प्रेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ये है चेरा जो किंग्स है उनके लिए लिखी गई है ये। 19th का आंसर है ए, तमिल पोएम्स है ये, और प्राइमरीली वन ऑफ द 8 एंथोलॉजिस्ट। ओके, ये जो संगम लिटरेचर में 8 एंथोलॉजिस्ट है, हम ये आगे तो हमारे जो पेपर्स है ना उसमें हम पढ़ेंगे इनके बारे में, बट ये जो है ये वन ऑफ द 8 एंथोलॉजिस्ट। जो 10 इडिल्स भी आते हैं संगम लिटरेचर में, 2 है, तोलकपियम और दूसरा वाला बोलो अगतियम। तोलकपियम और अगतियम में जो डिवाइड किए हुए हैं। और 8 एंथोलॉजिस्ट माने कि 8 ग्रेटर टेक्स्ट, जिसमें से एक आता है पतिरपटु, फिर कलिकोटाई, नतिरनाई, ऐसे बहुत सारे हैं। 8 टोटल 8 है। तो वो तो आपको वो भी नाम, ये सारे हम जो पढ़ते जाएंगे ना आगे, तो वो भी रिवाइज होते जाएंगे आने वाले ये वो। फिर उसको 10 आइडल्स में डिवाइड किया हुआ है, राइट। आगे हम ज़्यादा बड़ा पेपर वीडियो नहीं बनाएंगे, इसीलिए हमें फास्ट कवर करना है सब कुछ। द इंडियनाइजेशन ऑफ द साकाज वॉज एक्सेलरेटेड बाय द मैरिज कॉन्टैक्ट्स विद इन इंडिया। सातवाहन रूलर सतकर्णा वॉज सन इन लॉ ऑफ साका सतरा रुद्रदमन। यस, करेक्ट, ये दोनों का सही है। वशिष्ठ पुत्र श्री सतकर्णी ने शादी की थी रुद्रदमन की बेटी से। फिर भी रुद्रदमन ने पहले उनके झगड़े चलते थे, फाइट थी, बैटल किया, फिर वो बैटल में वो हारे भी रुद्रदमन, फिर उन्होंने उनकी बेटी दी, फिर से उन्होंने अटैक किया और फिर उन्होंने वशिष्ठ पुत्र को हरा दिया। श्री सतकर्णी, वशिष्ठ पुत्र श्री सतकर्णी को उन्होंने डिफीट किया था। पहले बहुत झगड़े करते थे भाई, बहुत ज़्यादा, बहुत सारे बैटल्स है जो आपको हिस्ट्री में मिलेंगे। अभी एपिथेट, किंग एंड एपिथेट टाइटल्स जो रहते थे, समुद्रगुप्त, महेंद्र वर्मन 1, पुलकेशिन, सिंधु राजा, सत्यश्राया, पराक्रमंका, नवशंका, विचित्र चित्ता। अभी मुझे विचित्र चित्ता का पता है, आपको कौन से वाले पता होंगे? बोलो। मुझे उसका पता है क्योंकि महेंद्र वर्मन को वो नाम दिया गया था,
बी का 4 2 में है, तो हमारा आंसर क्या है? ए है हमारा आंसर। जैसे कि समुद्रगुप्त को टाइटल क्या दिया गया है? पराक्रमंका, महेंद्र वर्मन को विचित्रचित्त, पुलकेशिन II को दिया गया टाइटल सत्यश्राया। सॉरी मैंने गलत लिख दिए। समुद्रगुप्त 1 का 2, महेंद्र वर्मन वाला 4, पुलकेशिन का 1 और सिंधु राजा उनको दिया है ऑप्शन 3 नवशशंका। ओके, आगे फिर से है कि ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? उपमति भाव परपंचकथा, उद्योतना सूरी, पद्म पुराण रविसेना, द्रव्य परीक्षा ठाकुरा पेरू, यश शीतल कचंपू सोमदेवा। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। क्यों? तो ये वाली बुक है, ये सिद्धार्थ गनी, जो कि एक जैनिज्म वाली बुक है ये, उपमति भवा। यस, 10th सेंचुरी में लिखी गई जैन टेक्स्ट है इन संस्कृत, और इनके सिद्धार्थ गनी बोलकर जो ऑथर है, क्या नाम है? सिद्धार्थ गनी। आगे 23 लिस्ट 1 लिस्ट 2, फिर से मैच द पेयर्स। ये वाले पेपर में बहुत सारे मैच द पेयर्स हैं। ओके, तो सर्कुलर टेम्पल प्लान, स्टार टेम्पल प्लान, रेक्टेंगुलर टेम्पल प्लान, पॉलीगोनल टेम्पल प्लान। टेम्पल नंबर 17 एट सांची, भैरत एट जयपुर, साउथ कोसाला टेम्पल, होयसाला टेम्पल्स। तो अभी आपको इसमें से कौन से पता है? मुझे पॉलीगोनल वाला पता है जो सांची में है। डी का 1 किस में? 2 ऑप्शन है, तो हमें वैसे एलिमिनेट नहीं करते आएगा। सॉरी सांची वाला, होयसाला पॉलीगोनल टेम्पल है जो होयसाला का रहता है, ये मुझे याद है। तो ऑप्शन डी, मैंने गलती से 2 मिक्स कर दिए थे। रेक्टेंगुलर है सांची वाले, और स्टार है साउथ कोसाला, और सर्कुलर भैरत एट जयपुर। ठीक है, यहाँ पर हम दे देंगे इन्हें। सर्कुलर वाले जो है ये 2, भैरत वाले, स्टार टेम्पल वाले है साउथ कोसाला, फिर रेक्टेंगुलर सांची, और पॉलीगोनल होयसाला। आगे 424 द रूलर्स ऑफ विच डायनेस्टी ऑफ डेक्कन हैव बीन डिस्क्राइब्ड बाय द अरब राइटर्स एज वन ऑफ द 4 ग्रेट सोवेरेन्स ऑफ द वर्ल्ड। ये है राष्ट्रकूट्स। ये काफ़ी ज़्यादा मतलब सेक्युलर ओपन थे, उन्होंने मुस्लिम्स को भी काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्ट किया था। इनफैक्ट जब राष्ट्रकूट्स का जब रूल चल रहा था तब ट्रेड भी बहुत ज़्यादा फ्लरिश किया था। अरब्स के साथ में ट्रेड स्टार्ट हो गया था 7th सेंचुरी में, और फिर उनके साथ में ही अगर आगे उन्होंने उनको मतलब वहाँ पर उन्होंने अलाउ भी किया था वुमेंस को कि आप मैरिज कर सकते हो, जो मुस्लिम अरब ट्रेडर्स जो भी आ रहे हैं उनके साथ में। और जो उनसे जो बच्चे पैदा हुए थे, जो उनके चिल्ड्रन थे, उन्हें क्या बोलते थे? मोपला। जो मोपला रेबेलियन हुआ था ना बाद में, यस, वो उनके बच्चे ही थे। उनके बच्चों को मोपला बोलते थे। जो मुस्लिम अरब रूलर्स थे, अरब ट्रेडर्स थे, और जो वुमेन, लोकल वुमेन थे, उनके जो बच्चे होते थे उन्हें। ठीक है, और जामा मस्जिद कब बिल्ड की थी? 10th सेंचुरी में, जो 900 वाले टाइम रहता है तब। ओके, समझा अभी? और मुझे कमेंट्स में बताओ कि राष्ट्रकूट कितने टाइम तक थे, कितने टाइम उन्होंने रूल किया था। जहाँ तक मुझे पता है 8 से 10th सेंचुरी उनका रूल है। मुझे एग्जैक्टली ईयर्स बताओ उनके रूल के। मैं आपको हिंट दे दी हूँ कि 8 से 10th सेंचुरी, ईयर्स बताओ। 25 टेक्स्ट है और उनका कंटेंट। तो गौड़वाहो, नागनंदा, पुरानुरु, अगनानुरु, 400 लव लिरिक्स, एक्सप्लॉइट्स ऑफ यशोवर्मन, किंग ऑफ कन्याकुब्जा, 400 पोएम्स ऑफ प्रेज ऑफ द किंग, स्टोरी ऑफ बोधिसत्व जिमुतवाहना। अभी ये जो नुरु है ना, दोनों भी, यह दोनों सिमिलर है, पुरानुरु और अगनानुरु। तो जो सी है उसका आता है प्रेज ऑफ पोएम किंग, प्रेज ऑफ किंग्स, और अगनानुरु का है 400 लव लिरिक्स। ठीक है, तो अभी ये दोनों किससे मैच कर रहे हैं ये देखो। अभी इसका एक ही आंसर है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, अगनानुरु लव पोएम्स, लव लिरिक्स। गौड़वाह क्या है? यशोवर्मन की, किंग ऑफ एक्सप्लॉइट्स ऑफ यशोवर्मन। नागनंदा क्या है? स्टोरी ऑफ बोधिसत्व जिमुतवाहना। पुरानुरु प्रेज ऑफ द किंग, और अगनारा लव लिरिक्स। ओके, समझ लो। आगे 26 विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट आर करेक्ट? इन द बिल्डिंग द टर्क
Sultans used the ark and dome on the wide scale. Okay, neither the ark nor the dome was a Turkish or Muslim innovation. Correct. The Turks used fine lime mortar in their buildings. The Turkish rulers did not use slab and beam method in their buildings. अभी यहाँ पर उन्होंने पूछा करेक्ट कौन से है, तो टर्किश ने तो स्लैब एंड बीम मेथड यूज़ किया था. यस, जो स्लैब एंड बीम मेथड आता है ना, ऐसे वाले डोम्स रहते हैं वो वाला, तो उन्होंने तो किया ही था. तो इसका आंसर है ऑप्शन सी. 1 2 3 करेक्ट है, बट जो लास्ट वाला है कि उन्होंने यूज़ नहीं किया वो गलत है. ओके, आगे 27th. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द अगेरियन सिस्टम अंडर द दिल्ली सुल्तनत एंड मुगल एम्पायर. तो इसमें क्या बताया गया है? अलाउद्दीन खिलजी इम्पोज द taxes called charai and ghari. Yes. Muhammad bin Tughlaq imposed additional cesses called abwabs on the peasants. Under Akbar, zabt the system of land revenue assessment further developed and it became Dehsala. Correct है ये भी. जहांगीर introduced the Naqsh system of assessment. तो अभी अलाउद्दीन ने चराई एंड घराई भी स्टार्ट किया था. चराई माने की जो कैटल्स टैक्स है और घराई माने जो हाउस टैक्स है. दहसाला सिस्टम जो अकबर के टाइम पर आया था, तोदरमल ने लाया था, वो भी करेक्ट है. फिर उसके बाद में इन्होंने क्या बोला है कि मोहम्मद बिन तुगलक वाला वो रॉन्ग है. ठीक है, तो हमारा सॉरी वो राइट है. हमारा एक ही है जो ऑप्शन सी है वो इनकरेक्ट है. डी जहांगीर जो है इंट्रोड्यूस नक्श सिस्टम वो गलत है. ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने एडिशनल सेस लगाया था अब्बाब्स. आगे तारीख फिरोज शाही वॉज आर रिटन बाय. तारीख फिरोज शाहीज 2 लिखी गई है, तो ये है ज़ियाउद्दीन बर्नी और शम से सिरफ अफीफ. फिरोज शाही, फिरोज शाह कौन थे? फिरोज शाह तुगलक, जो मोहम्मद बिन तुगलक के बेटे थे और 3rd रूलर थे तुगलक डायनेस्टी के. इनके टाइम पर जो ये फिरोज शाही, तारीख फिरोज शाही है, ये वन ऑफ द फाइनेस्ट स्पेसिमेन ऑफ इंडो पर्शियन हिस्टोग्राफी है, जो कब बनी थी? 1357. ज़ियाउद्दीन बर्नी ने जो बनाई थी वो 1357 AD में बनाई गई थी, लिखी थी. 29. पोस्ट ऑफ दीवान शाहगिर्द मुहरिम शुड बी गिवन ओनली टू अल्क ए कलम and whose ancestors have served rulers and amirs who expressed the above view. ये किसने बोला था? ये बोला गया था ज़ियाउद्दीन बर्नी ने. सॉरी हमारे फ़कर मुदब्बिर ने बोला था. ये एक पर्शियन ऑथर थे जो किनके कोर्ट्स में प्रेजेंट थे? गजनविद्स, गुरीज, और फिर बाद में दिल्ली सल्तनत में भी आए थे. और इनके ये एक बहुत अच्छे उर्दू ग्रामर लेक्सियोग्राफर है. ठीक है, इन्होंने बहुत अच्छी बुक्स लिखी है, जिसमें एक बुक का नाम है, हम वो भी मेंशन कर देते हैं, अदब उल सॉरी अगर प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा गड़बड़ा है तो अदब वा ए शुजा. फिर उन्होंने एक और एक बुक लिखी थी शाहजरा ई अनसब और सर्कल ऑफ जस्टिस, और जो उन्होंने सर्कल ऑफ जस्टिस. फ़कर मुतब्बिर की ये बुक्स है. मैं बुक्स एंड ऑथर्स क्यों बता रही हूँ, वापस से एक बार बोल देती हूँ, ताकि आपको जब एग्ज़ाम में पूछा आए तो आपको पता रहना चाहिए बुक्स एंड ऑथर्स, क्योंकि हर साल तो आते ही इस पर क्वेश्चन. तो अभी से नोट्स बनाना चालू कर दो, आगे जाकर आपके पास में सिर्फ रिविजन करने के लिए रहेगा, बहुत सारे नेम्स रहेंगे. यस, क्योंकि पता है आपको 20, 21, 22 और 20 वाले जो पेपर्स है उसमें बुक्स एंड ऑथर्स बहुत सारे हैं. इनफैक्ट मेरे पास तो इतने सारे बुक्स एंड ऑथर्स लिखे हुए हैं कि मैं मतलब काउंट भी नहीं कर सकती हूँ. अभी मैंने तो सिर्फ लिखती रही. एट द एंड अभी मेरे पास कम से कम 10 पेजेस है जो सिर्फ बुक्स एंड ऑथर्स है, और वो बुक्स एंड ऑथर्स एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न वाले हैं. फिर वो इंडियन भी है, वो जो फॉरेनर्स है वो भी है. 30. सूफी सेंट्स और सेंटर ऑफ एक्टिविटी. शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, हमें तो ये अजमेर वाले हैं, ये तो पता ही है. ए का 4 है क्या किसमें में? 2 में है. चलो, शेख बहाउद्दीन ज़कारिया, शेख फरीदुद्दीन मसूद गुंज शक्कर, शेख निज़ामुद्दीन औलिया निज़ामुद्दीन औलिया तो दिल्ली वाले हैं, तो डी का 1. ठीक है, चलो डी का 1 तो सब में ही है. तो अभी जो बहाउद्दीन ज़कारिया है ना हमारे, वो मुल्तान वाले हैं, और शेख फरीदुद्दीन जो है ये अजोदन वाले हैं. बी का 3 किस में है फिर? तो हमारा आंसर है ऑप्शन सी. एक में ही था तो इसीलिए हमारा ऑप्शन है 30 का ऑप्शन सी. ठीक है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती 4 अजमेर, ज़कारुद्दीन मुल्तान, फरीदुद्दीन अजोदन और निज़ामुद्दीन औलिया दिल्ली. उनकी तो टॉम बहुत है ना वहाँ पर दिल्ली में, मॉस्क काफ़ी इन्फ्लुएंस है उनका दिल्ली में. एक सॉन्ग भी है जिसमें उनका मेंशन किया हुआ है. कौन सा सॉन्ग है वो? कुन फाया कुन.
31 कागज़ खाम इज़ क्या है? कागज़ खाम ये एक तरह के बायलिंगुअल रेवेन्यू रिकॉर्ड्स है। 32 विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिवल इंडियन रूलर्स फाउंडेड द सिटी ऑफ आगरा? इन्होंने ही उसे कैपिटल भी बनाया था फिर, सिकंदर लोदी, जिन्होंने अपनी दिल्ली से कैपिटल आगरा शिफ्ट की थी। कब? 1506 उन्होंने फाउंड पहले किया था, फिर कैपिटल शिफ्ट की थी। हाँ 33 विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? अभी करेक्ट क्या है? बहामनी रूलर फिरोज शाह वॉज कॉल्ड वाली। नहीं, बहामनी रूलर अहमद शाह वन को वाली बोला गया था बिकॉज ऑफ हिज एसोसिएशन विद सूफी सेंट घेसुदारस, तो वन गया। फिरोज शाह बहामनी वॉज डिफीटेड बाय विजयनगर रूलर देवराया वन। अब 33 का उन्होंने बोला है, ये तो करेक्ट है कि देवराया वन से वो डिफीट हुए थे। अहमद शाह बहामनी शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम गुलबर्गा टू वारंगल। नहीं, इन्होंने वारंगल नहीं किया था, इन्होंने बीदर किया था, बीदर। ओके और आगे क्या दिया है? डी क्या दिया है? अहमद शाह बहामनी वन एंकरेज द परस्यूट ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड बिल्ट एंड ऑब्जर्वेटरी नियर दौलताबाद। नहीं, दौलताबाद की वहाँ पर ऑब्जर्वेटरी किसने बनाई थी? फिरोज शाह ने बनाई थी। और उन्होंने काफ़ी सारे हिंदूज को भी इंडक्ट किया था अपने एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है। और फिरोज शाह और अहमद शाह भाई थे, दोनों भी भाई थे। फिरोज शाह के डिफीट के बाद में अहमद शाह ने एम्पायर संभाला था। आगे 34 Which of the following statements is not correct? Guru Nanak was thoroughly familiar with the political and administrative arrangements made by Afghan rulers, particularly in Punjab. Correct. He viewed Babur's invading army as a marriage party of sin. Correct. It was his conviction that God has no caste. He gives no consideration to caste. Correct. The Brahman and the Khatriya are not a part of oppressive establishment. ये wrong है, वो ही तो थे। तो आंसर है डी। क्या है आंसर? डी। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू? नॉट ट्रू। तो शेर शाह बिल्ट अ न्यू रोड फ्रॉम लाहौर टू मुल्तान, ग्रैंड ट्रंक रोड, तो ये इधर के साइड में इंडिया में बना गया था। उन्होंने लाहौर से मुल्तान बोला है। शेर शाह ने वहाँ पर भी एक रोड बनाया था। ही आउस्टेड मिर्जा हैदर दुगलत फ्रॉम कश्मीर। नहीं। आफ्टर द कंक्वेस्ट ऑफ मारवार ही अटैक गुजरात। नो। मारवार के बाद में उन्होंने खिलंजीर, जो अपने कहाँ पर है, यूपी में आता है खलिंजर, वहाँ पर उन्होंने किया था कंक्वेस्ट। और उसके बाद में तो 1945 में उनकी डेथ भी हो गई थी, तो गुजरात तो गए ही नहीं थे। मालवा, बुंदेलखंड, पंजाब, मुल्तान, सिंध उतने ही उनके पास में थे, और मारवाड़। ही इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ दाग एंड चेहरा। दाग एंड चेहरा ये जो अलाउद्दीन खिलजी ने भी लाया था, और फिर इसको कंटिन्यू किया था शेर शाह ने। तो इसीलिए आंसर आता है 2 and 3, ठीक है। 2 and 3 इन्होंने इंट्रोड्यूस नहीं बोल सकते, बट फिर भी जो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है वो 2 and 3 आएगा, क्योंकि ऐसा 2, 3, 4 तो कहीं पर दिया नहीं है। अलाउद्दीन खिलजी ने इंट्रोड्यूस किया था। 36 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अकबर। द कंक्लूडिंग पोर्शन ऑफ एन अकबर कंटेन्स एन एक्सटेंसिव account of the thoughts and customs of India. Sheikh Faizi was instructed by Akbar to undertake the translation of Upanishads. तारा शिकोह को दिया था। Akbar's preference for monogamy was first expressed in 1578 in conversation with Sheikh Ibrahim Serin. क्रिश्चियंस के साथ में कन्वर्जेशन किया था, तब उन्होंने मोनोगैमी के बारे में बोला था। अकबर issued an order in 1562-63 that women and children should not be enslaved when troops raided rebels or defiant villages. करेक्ट। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 2 and 3। इसका भी आंसर है 2 and 3। ना हाँ ऑप्शन बी। ओ सॉरी, हाँ इन्होंने यहाँ पर ट्रू पूछा है ना, करेक्ट पूछा है, सॉरी करेक्ट पूछा है। तो इसका आंसर है बी, करेक्ट। इसका आंसर करेक्ट आंसर है बी। यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, तो इसका 1 and 4 करेक्ट है। ये जो है शेख फैजी नहीं थे, दारा शिकोह ने ट्रांसलेट किया था उपनिषद को। 37 हु अमंग द फॉलोइंग रिलीजियस ग्रुप्स इंट्रोड्यूस प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया इन 1557। ये तो जिजिस्ट मिशनरीज थे जिन्होंने लाया था। और जो सबसे पहली बुक प्रिंट की गई थी उसका नाम क्या था? डॉक्ट्रिना क्रिस्टम। डॉक्ट्रिना क्रिस्टम इज द फर्स्ट बुक प्रिंटेड इन इंडिया इन कोंकणी लैंग्वेज। फर्स्ट बुक प्रिंटेड इन इंडिया। और ये कहाँ पर लाई गई थी ये प्रिंटिंग प्रेस? गोवा में। पोर्चुगीज थे, इन्होंने लाई थी। ओके 38 विच मुगल पेंटर वॉज अनरेवल्ड इन डिपिक्टिंग एनिमल्स। ये थे काफ़ी अच्छी, इन्होंने एक पेंटिंग बनाई थी बाज पक्षी की, जो बाज बर्ड रहती है ना, उसकी एक बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई थी उस्ताद मंसूर।
ऑप्शन सी उस्ताद मंसूर, जहांगीर के कोर्ट में थे। किसकी कोर्ट में? जहांगीर। आगे assertion and reasoning. The East India Company eliminated their Portuguese and Dutch trade rivals by end of 17th century. Okay. English traders sold goods of superior quality at cheap rates. ये उसका रीज़न नहीं है, उन्होंने उनके साथ में बहुत सारे झगड़े किए थे, वॉर्स बैटल्स, उसके बाद में ये गए थे। तो इसका आंसर क्या आएगा? ये ड्रॉप किया गया क्वेश्चन है, सॉरी, हाँ ये ड्रॉप कर दिया गया है, ड्रॉप है ये। क्यों ही ड्रॉप किया है भाई, हम तो इसको बोल सकते थे। उन्होंने ये भी किया था कि उन्होंने अपने गुड्स को थोड़ा मतलब रेट कम ही दिया था, बट झगड़े भी किए थे, बहुत सारे बैटल्स भी हुए थे, पोर्चुगीज़ के साथ में भी किया था, डच के साथ में भी किया था। तो ये क्वेश्चन तो ड्रॉप है। आगे 40, बॉम्बे एक्वायर्ड बाय इंग्लिश ओरिजिनली बिलोंग टू पोर्चुगीज़। जो हमारे किंग्स चार्ल्स II थे, उनको 1661 में मिला गया था। कैसे मिला था? डाउरी। और एक जगह थी जो उन्हें एज अ डाउरी मिली गई थी, वो था तंजियर, जो कि एक नॉर्थ अफ्रीकन स्टेट, नॉर्थ अफ्रीका, ये भी उन्हें एज अ डाउरी दी गई थी। दहेज तो तब भी था, उन लोगों में भी था, देख लो अभी कितने धुगले लोग थे। 41, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, क्रॉनिकल और ऑथर, शाहजहांनामा, नुस्खे दिलखुशा, बादशाहनामा, आलमगीरनामा, अब्दुल अमीद लाहौरी, इनायत खान, मोहम्मद काजिम, भीमसेन। अभी मुझे बी का पता है, नुस्खे दिलखुशा भीमसेन है, ये मुझे बहुत अच्छे से पता है। फिर शाहजहांनामा का कौन है, ये भी मुझे पता है, सॉरी, इनायत खान। अब मुझे ए का 2 पता है और बी का 4 पता है, ए का 2, बी का 4। सॉरी, मैंने कुछ गड़बड़ किया है क्या? हाँ, यहाँ पर ए का 2, बी का 4। फिर उसके बाद में बादशाहनामा वाले तो लाहौरी, अब्दुल अमीद लाहौरी, और आलमगीरनामा इनायत खान, मोहम्मद काजिम। शाहजहांनामा वाले थे इनायत खान, नुस्खे दिलखुशा, भीमसेन, बुरहानपुरी। ये औरंगजेब के टाइम पर लिखी गई बुक है, डेक्कन अफेयर्स के बारे में। जो डेक्कन में जो था ना, मराठास, फिर गोलकोंडा, बीजापुर, उन सब के बारे में इस बुक में दिया गया है। बादशाहनामा किसने लिखी है? लाहौरी ने। और जो आलमगीरनामा है वो लिखी थी काजिम। आगे 42, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? Aurangzeb appointed muhtasibs in all province. Aurangzeb continued to celebrate the festival of Nowruz. The largest number of Persian works on classical Indian music were written in Aurangzeb's reign. Aurangzeb himself was a proficient in playing वीणा। तो ये है नवरोज़, उन्होंने डिसकंटिन्यू किया था। क्यों? तो पता है क्या, नवरोज़ 9 दिन का फेस्टिवल था और उसमें जो मुग़ल नोबिलिटीज़ थे, जो बड़े लोग थे मुगल्स के, तो उन्होंने एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया था वुमेन को। जो लोअर कास्ट के वुमेन्स थे, लोअर क्लास वाले, उन्हें एक्सप्लॉइट करते थे, उन्हें बहुत परेशान करते थे, इसीलिए औरंगजेब ने वो बंद कर दिया था। और एक मिनट, नवरोज़ किसने स्टार्ट किया था? नवरोज़ स्टार्ट किया था बलबन ने। स्लेव डायनेस्टी वाले जो बलबन थे, उन्होंने स्टार्ट किया था नवरोज़। 43, W.C. Smith was among the first to speak the peasant revolts against the Mughal Empire. He also argued that by its encouragement of commerce, the Mughal Empire brought about a considerable growth of middle class. C.A. Babley developed the great firm theory to explain the decline of Mughal Empire. J.F. Richards had argued that peasants' resistance led to serious agrarian crisis. अब यहाँ पर पूछा है नॉट करेक्ट, मतलब कि गलत कौन से स्टेटमेंट्स है? तो ये है C and D, ऑप्शन C and D। 3 and 4 जो है वो गलत है। 43 का आंसर है C। ओके, ग्रेट फॉर्म थ्योरी तो दी गई है, पर ये इन्होंने नहीं दी है। उनका नाम कुछ तो भी एच से आता है, मुझे अभी उनका नाम एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, बट उनका नाम कुछ तो भी आता है एच से। ओके, आगे 44, हुज असर्शन इज दैट शिवाजी स्वराज वॉज नथिंग बट रेप्लिका ऑफ पतन। ये तो एंड्रे विंग थे, जिन्होंने एक बहुत अच्छी बुक लिखी थी। उनकी बुक का नाम क्या है? काफ़ी बड़ा नाम था ये बुक का, लैंड एंड सॉवरेनिटी इन इंडियन एग्रेरियन सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स अंडर द 18th सेंचुरी मराठा स्वराज्य। 18th सेंचुरी मराठा स्वराज्य। ओके, आगे 45, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? In Mughal India, the zamindari rights were both hereditary and saleable. All the villages were under the control of zamindars. The zamindar share in surplus produced was uniform all over
मुगल एम्पायर, ऑल जमींदार्स वेयर मालिक ए ज़मीन। अभी देखो यहाँ पर हर जगह ऑल 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 आया है। अभी इतना तो एकदम से सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं था कि हर तरफ सेम होगा, तो इसीलिए हमारा आंसर है ऑप्शन ए। मतलब ऐसे एकदम जो बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट स्टेटमेंट्स आते हैं ना, वो कभी सही नहीं होते, मोस्टली तो नहीं होते। एक आधी बार कुछ अगर बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस बेस्ड है तो हो सकते, बट मोस्टली नहीं होते। और जैसे मुगल सिस्टम तो काफ़ी वैलिड था, तो वहाँ पर तो पॉसिबल ही नहीं है। Spending not hoarding was the dominant characteristic of the pattern of the life of nobles. The above remark was of Moreland. W.H. Moreland जो थे उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था उनके बुक में। उन्होंने बुक लिखी थी इंडिया एट द डेथ ऑफ अकबर, फिर जहांगीर्स इंडिया, और फिर फ्रॉम अकबर टू औरंगजेब। ये उन्होंने 3 बुक्स लिखी है काफ़ी फेमस। फ्रॉम जहांगीर्स इंडिया, तो उसमें उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था, स्पेंडिंग नॉट होर्डिंग वॉज द डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पैटर्न ऑफ लाइफ ऑफ नोबल्स। खर्च करना जानते थे, होर्ड करना है मतलब बचाना नहीं। आगे 47, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स: प्रोपोगेशन ऑफ वैष्णवाइट भक्ति बाय रामानंद, कंपाइलेशन ऑफ आदि ग्रंथ, क्लोज ऑफ इबादत खाना, फाउंडेशन ऑफ चिश्ती ऑर्डर इन डेक्कन। तो सबसे पहले तो रामानंद वाला जो था 14th सेंचुरी में, फिर फाउंडेशन ऑफ चिश्ती सूफी ऑर्डर इन डेक्कन, फिर क्लोज ऑफ इबादत खाना, और फिर कंपाइलेशन ऑफ आदि ग्रंथ। तो हमारा करेक्ट आंसर है 47 का ए। ठीक है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। आगे नॉट करेक्टली मैच्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच? करोरी, खलीसा, तरफदार, पैबाकी। करोरी माने रेवेन्यू ऑफिशियल इन मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, खलीसा जो लैंड थी, लैंड रेवेन्यू फ्रॉम विच रेवेन्यू वॉज डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू इंपेरियल ट्रेजरी, तरफदार प्रोविंशियल गवर्नर्स अंडर द बहामनी सल्तनत, और पैबाकी असाइनमेंट ऑफ रेवेन्यू। पैबाकी क्या रहती थी? एक लैंड रहती थी जो अनअसाइन रहती थी, मतलब कोई उसके ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है, वो वाली लैंड रहती थी पैबाकी। बाकी के जो टर्म्स है ना, ये वाले, ये सारे जो 3 टर्म्स है, इनको अच्छे से देख लो, ध्यान में रखो या फिर लिख कर रख लो, बिकॉज ये टर्म्स रिपीट होते हैं। खलीसा लैंड तो काफ़ी जगह फेमस है, बहुत बार आती है एग्जाम्स में। हु अमंग द फॉलोइंग स्कॉलर्स आर्ग्यू दैट द प्री कॉलोनियल इंडियन इकोनॉमी वाज प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स कैपिटलिज्म? ये है A.I. चिचेरोव। उन्होंने कौन सी बुक लिखी है? A.I. चिचेरोव, इन्होंने कौन सी बुक लिखी है? इंडिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन 16th to 18th centuries, आउटलाइन हिस्ट्री ऑफ क्राफ्ट्स एंड ट्रेड्स, ये बुक का नाम है, लिख लो अपने पास में। फिर से आदर्शन एंड रीजनिंग। द ब्रिटिश वन द बैटल ऑफ प्लासी विदाउट एनी रियल फाइटिंग। द बैटल ऑफ प्लासी गेव द ब्रिटिश अ पॉलिटिकल फुटहोल्ड इन बंगाल एंड बिहार, उड़ीसा। तो ठीक है, अभी बंगाल में उनको फुटहोल्ड मिला था, पर बिहार एंड उड़ीसा में नहीं मिला था। बैटल ऑफ बक्सर के बाद में ही उनका पूरा फैलना शुरू हो गया था। ठीक है, 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, जहाँ पर नवाब शुजाउद्दौला को डिथ्रोन किया था, और वो किसकी वजह से हुआ था? जो मीर जफर थे, वो ट्रेटर थे, उन्होंने मतलब ब्रिटिशर्स के साथ में मिलकर नवाब को एक साइडलाइन कर दिया, भीतर को मार दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। आगे जो 100 ईयर्स उन्होंने फिर अपना जो 1857 तक पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन चलाते रहे, हर अलग अलग तरीके से उन्होंने एनेक्स किया सारी जगह, तो फिर उसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा सब कुछ गया था। 51, व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ड्यूरिंग द कंपनी पीरियड? मेन पूछा यहाँ पर, मेन। इंडियन मार्केट्स वेयर फ्लडेड विद चीप मशीन मेड गुड्स फ्रॉम इंग्लैंड। हैंडीक्राफ्ट्स पर तो प्रेशर आई था, कुड नॉट फिट स्टैंड द प्रेशर, मतलब वो तो हुए थे परेशान। इंडियन रूलर्स कुड नॉट एक्सटेंड पैट्रोनेज, उनकी भी हालत टाइट हो गई थी। लोकल जागीरदार एंड जमींदार से डिसअपियर नहीं हुए थे, बट वो पैट्रोनेज नहीं कर पा रहे थे जैसे वो पहले यूज देखते थे, वो अब इंग्लिश गुड्स वगैरह यूज़ करना चालू करते थे। मर्केंटिलिस्ट, फ्री ट्रेड मर्केंटाइल, कैपिटलिज्म एंड फाइनेंस इंपीरियलिज्म आर 3 सक्सेसिव phases of British colonialism. This theory was first formulated by Karl Marx. मार्क्स की थ्योरी, ये तो काफ़ी फेमस इकोनॉमिक। मर्केंटिलिज्म माने क्या होता है कि अपने जो एक्सपोर्ट है उसको मैक्सिमाइज करो और जो इम्पोर्ट है उनको मिनिमाइज करो, जैसे चाइना। 53, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल वाज फाउंड टू प्रमोट द स्टडी ऑफ इंडियन लैंग्वेज एंड स्क्रिप्चर्स। एशियाटिक सोसाइटी किसने फाइंड की थी? विलियम जोन्स। कहाँ पर है? बंगाल में। विलियम जोन्स, कलकत्ता, इन 1784। विलियम जोन्स इन 1784। ओरिएंटल स्टडीज।
अभी ना इंग्लिश वाले तो मतलब ओरिएंटलॉजिस्ट ये सब बहुत सारे टर्म्स है, ये ऐसे ओरिएंटल माने ना कि इंडिया के रिलेटेड बात कर रहे हैं, ये समझ लो। आगे 54, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉपुलर नोन एज द गडकरी रिवोल्ट। ये थे ऑप्शन बी द हेरिडेटरी सर्वेंट्स ऑफ द फोर्ट्स हु वे थ्रेटन्ड विद दिस बैंडमेंट। तो जो कोल्हापुर है महाराष्ट्र में, वहाँ पर इन 1844 में जो लोग थे वो जो फोर्ट्स की देखरेख करते थे, उनको डायरेक्ट ब्रिटिश रूल आ गया था कोल्हापुर में। जब सातारा पॉलिसी जो एनेक्सेशन की वजह से चले गया था, तो फिर कोल्हापुर डायरेक्टली ब्रिटिशर्स के अंडर आ गया। तो जो दाजी थे, दाजी कृष्णा पंडित लीडर थे ये पिंडारी गडकरी के, तो उन्होंने बोला था रिवोल्ट करने के लिए, क्योंकि उनकी तो अथॉरिटी थी फोर्ट्स के ऊपर, वो सर्वेंट्स थे, वो वहीं पर काम करते थे। अगर आप उनको हटा दोगे तो उनके पास में काम ही नहीं रहेगा, इसीलिए उन्होंने रिवोल्ट किया था। 55, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट टू डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट। एंटी ब्रिटिश, प्रो ब्रिटिश, एंटी कांग्रेस, प्रो कांग्रेस। तो ये प्रो ब्रिटिश थे, एंटी कांग्रेस थे 2 और 3। और ये किसने स्टार्ट किया था? सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान। कब किया था? इन 1875। ब्रिटिश कांग्रेस के अगेंस्ट उनको एक कुछ स्ट्रॉन्ग चाहिए था, इसीलिए उन्होंने ये स्टार्ट किया था। 56, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ प्लांटेशन इंडस्ट्री। प्लांटेशन नहीं है, प्लांटेशन इंडस्ट्री। तो ये कौन सी नहीं है? हमारा वीट का प्लांटेशन होता है। बाकी इंडिगो, टी, कॉफ़ी, तो ये तो प्लांटेशन ही है। इंडिगो पे तो 3 कटिया, 5 कटिया, फिर इंडिगो रिवोल्ट, काफ़ी कुछ हुआ है। 57, बाय विच एक्ट ईस्ट इंडिया कंपनीज मोनोपोली ओवर ट्रेड विथ इंडिया एंडेड। ये था चार्टर एक्ट ऑफ 1833। पर फिर भी टी और ट्रेड के साथ ट्रेड विथ चाइना के साथ में चालू था। तो फिर वो कब ख़त्म हुआ था? 1833 वाले एक्ट के साथ। ये वाला जो एक्ट है ट्रेड विथ चाइना और चाय मतलब कि टी, तब ख़त्म हुई थी। आगे पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन, डॉक्टरिन ऑफ लैप्स जो डलहौजी की थी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो लिस्ट प्लेसेस है और ईयर ऑफ एनेक्सेशन, जहाँ से संबलपुर, अवध, नागपुर। 49, 53, 54, 56। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? 58 का डी। झांसी गया था 53 में, संबलपुर गया था 49 में, सबसे पहले सातारा जाता है, अवध सबसे आखिरी में जाता है, और अपना क्या बोलते हैं 1857 के वॉर के पहले, म्यूटिनी के पहले जाता है अवध, और मिस गवर्नेंस के बेसिस पर अवध को ले लिया था। नागपुर 1854। ठीक है, चलो आगे। लॉर्ड रिपन पास द असर्शन रीजनिंग द एल्बर्ट बिल। दिस पुट बैक द वर्नाकुलर प्रेस ऑन अ फुटिंग ऑफ इक्वालिटी विद इंग्लिश। ये इक्वालिटी पर आया था क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो ये वर्नाकुलर प्रेस था, इन्होंने तो इनफैक्ट बोलती बंद करवा दी थी, इसीलिए आर तो फॉल्स है। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। आगे 60, of the large number of Indians, 3 made outstanding economic analysis of British rule during the year 1870 to 1905. Who were they? ये थे नवरोजी, दादाभाई नवरोजी, MG माने गोविंद रानाडे और RC दत्त, रोमेश चंद्र दत्त। तो जो नवरोजी है उनकी तो ड्रेन थेरी पता ही है, ड्रेन ऑफ वेल्थ थेरी, जो उनकी बुक में उन्होंने लिखी थी, ब्रिटिश पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये नवरोजी की बुक है, पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, उसमें उन्होंने लिखा था। फिर राणा डे ने किया था साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक डिक्लाइन एंड डेवलपमेंट। यस, उन्होंने एक साइंटिफिक एनालिसिस किया था, बिना एविडेंस के वो बात नहीं करते थे, महादेव गोविंद रानाडे। और फिर RC दत्त ने कौन सी बुक लिखी है? इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया इन विक्टोरियन एज। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया इन विक्टोरियन एज। 61, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? करेक्टली पेयर। जस्टिस मूवमेंट बिहार, नहीं, ये मद्रास में हुआ था। कायास्था मूवमेंट, ये कर्नाटक में, नहीं, ये नॉर्थ इंडिया में हुआ था। लिंगायत मूवमेंट महाराष्ट्र, नो, ये हुआ था कर्नाटक में। और नाम सुद्रा मूवमेंट बंगाल, ये करेक्ट है क्योंकि ये बंगाल में ही हुआ था। और नाम समुद्रा कौन से लोग थे? ये जो अनटचेबल्स थे, वो लोगों ने सबने मिलकर ये रिवोल्ट या रेबेलियन किया था, मूवमेंट। क्यों? तो उनका ऑपरेशन सोशल ऑपरेशन हो रहा था, डिप्राइव कर रहे थे, डिस्क्रिमिनेट कर रहे थे उनके अगेंस्ट हिंदूज, तो इसीलिए उन्होंने ये मूवमेंट किया था। 62, देयर जॉइंट डिक्लेरेशन ऑन 20 नवंबर 1960 विच केम टू बी कॉल्ड नॉन ब्राह्मण मैनिफेस्टो। ये डेट देख लो 1916 वाली, और एक नॉन ब्राह्मण मैनिफेस्टो डिमांडेड द रिजर्वेशन फॉर नॉन ब्राह्मण्स इन गवर्नमेंट जॉब्स। दिस वॉज फर्स्ट कलेक्टिव डिमांड फॉर रिजर्वेशन रेज्ड इन साउथ इंडिया। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग। तो ये किसने किया था? डॉक्टर TM नायर, थेगराज चेट्टी। और ये कौन सी पार्टी थी? ये थी जस्टिस पार्टी, जो मद्रास में स्टार्ट की थी। 62 का ऑप्शन है बी, TM नायर, थेगराज चेट्टी और मुदलियार।
ये भी थे इसमें। 63 फिर से विच वॉज वन फर्स्ट मॉडर्न ट्रेड यूनियन इन इंडिया। फर्स्ट मॉडर्न ट्रेड ये थी मद्रास लेबर यूनियन इन 1918 सबसे पहली, और AITUC फेडरेशन थी जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस थी, वो फेडरेशन थी। फर्स्ट ट्रेड यूनियन फेडरेशन 1920 में आई। ठीक है, तो ये किसने स्टार्ट की थी? BK मुदलियार और BP वाडिया ने। ठीक है, आगे 64 एसोसिएशन और प्लेस, रहनुमानी मस्जिदान सभा, दरुल उमल, नदवा उल उलेमा, मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, देवबंद, बॉम्बे, अलीगढ़, लखनऊ। अब रहनुमानी जो पारसी लोगों की थी वो बॉम्बे में थी, तो A का 2 किस में है? सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर है 64 का B। बाकी देखेंगे हम, दरुल उलमा देवबंद, नदवा उल उलेमा लखनऊ और मोहम्मदन जो कि हमारी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है वो ऑप्शन 3 अलीगढ़ में हुई थी। इसका 2, इसका 1, इसका 3, सॉरी इसका 4 और इसका 3। चलो आगे अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ वुमेन हु वाइल रिसीविंग हर डिग्री फ्रॉम गवर्नर ऑफ बंगाल शॉट हिम वाज बीना दास। ये कौन थे? बीना दास, जिन्होंने कब किया था ये? 1932 में देवसियन वुमेन्स कॉलेज, यहाँ पर वो स्टडी करने को थे। उन्होंने अपने कॉन्वोकेशन में सर स्टैनले जैक्सन को गोली मारी थी। यस, रिवोल्यूशनरी थे ये, और इन्होंने डायरेक्टली गोली मारी थी अपने कॉन्वोकेशन के टाइम पर। ठीक है, बीना दास। इन्होंने 2 बायोग्राफीज भी लिखी है बंगाली लैंग्वेज में। उनकी बायोग्राफी है श्रृंखल झंकार एंड प्रीति धन, ये 2 बायोग्राफीज हैं उनकी। 66 who was called the father of assembly for being a member of the central legislative assembly for 26 years। ये थे नारायण मल्हार जोशी। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है लेबर यूनियन, ट्रेड यूनियंस में, तो ट्रेड यूनियन के लीडर भी रह चुके हैं ये। सोशल सर्विस लीग इन्होंने फाउंडर फाइंड की थी। सोशल सर्विस लीग बोलकर एक लीग थी जो इन्होंने फाइंड की थी, और ये किसके फाउंडर है? और एक चीज़ के फाउंडर है, ये है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो 1920 में बनी थी, उसके ये फाउंडर मेंबर भी थे नारायण मल्हार जोशी, NM जोशी। 67 हु अलॉन्ग विद तिलक वॉज द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर केसरी एंड मराठा। ये थे GG अगरकर। और GG अगरकर की और एक जो इंडिविजुअल बुक थी, पीरियोडिकल थी, वो क्या थी? सुधारक। ये उनकी इंडिविजुअल थी। ठीक है, आगे जल्दी जल्दी अभी खत्म करना है, बहुत बड़ा वीडियो हो रहा है। 68 विच एक्ट वॉज निकनेम्ड एज द गैगिंग एक्ट। ये कौन सा एक्ट था? वर्नैकुलर प्रेस एक्ट ऑफ 1878। ये मतलब ये ना एक ऐसा एक्ट था कि इसको अपना एंग्लो अफगान वॉर चल रहा था, और जो इंडियंस थे वो लिख रहे थे तो अगेंस्ट ब्रिटिश, तो उसको रोकने के लिए ये वाला एक्ट लाया गया था। और मोस्टली इसका जो मेन टारगेट था वो था अमृत बाजार पत्रिका, जो बंगाल में काफ़ी चलती थी ना, वो उसका मेन टारगेट थी। और ये इस एक्ट को बाद में रिपील किसने किया था? लॉर्ड रिपन ने। 69 वन ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इशूज अ रेजोल्यूशन वॉज पास्ड आफ्टर डिबेट एट हरिपुरा सेशन ऑफ कांग्रेस इन 1938 टू सपोर्ट पीपल्स मूवमेंट इन प्रिंसली स्टेट। ऑप्शन बी। और हरिपुरा सेशन के प्रेसिडेंट कौन थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। यस, वो वहाँ के इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे। उन्होंने 1939 में रिजाइन किया था। 70 नेम द हिस्टोरियन अबाउट हुम औरोबिंदो घोष सेड ही प्रिपेयर्ड द पब्लिक माइंड फॉर द बायकॉट मूवमेंट। ये थे रोमेश चंद्र दत्त। 70 का आंसर है D, RC दत्त। अभी हमने जिनके बारे में पढ़ा था ना, इकोनॉमिस्ट, वही। 71 हु ऑफ द फॉलोइंग वॉज पॉपुलरली नोन एज फायर ब्रांड ऑफ साउथ इंडिया। ये है S सत्यमूर्ति। इन्हें फायर ब्रांड ऑफ इंडिया क्यों बोला जाता है? ये साउथ इंडिया में काफ़ी फेमस है, और मतलब जो अपना मद्रास प्रेसिडेंसी में फेमस थे, कांग्रेस के पॉलिटिशियन रह चुके हैं। कांग्रेस में स्वराज्य मूवमेंट भी, स्वराज्य पार्टी जो थी ना कांग्रेस की अलग, जो मोतीलाल नेहरू ने स्टार्ट की थी, वो उसके भी पार्ट रह चुके हैं। और मद्रास के मेयर थे ये 1939 से 1943, फिर 43 में इनकी डेथ हो गई थी। इनफैक्ट क्विट इंडिया मूवमेंट में भी इनका काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। 72 हु अमंग द फॉलोइंग फिलोसोफर्स कंट्रीब्यूटेड टू द थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट? T. हॉब्स, जे लॉक, जे रूसो। ये 3 नाम ना रट्टा मार लो। थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट एकदम पक्का लिख के रख लो ये बुक, ये वाले 3 नाम, क्योंकि हर बार ये रिपीट होते हैं कितना भी बोलो। और रूसो की एक बहुत अच्छी बुक है, कौन बोलेगा उसका नाम? कमेंट्स में बोलोगे या मैं ही बोल दूँ?
मैं ही बोल देती हूँ, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। उसी से रिलेटेड बुक थी उनकी, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। उन्होंने और भी लिखी है जैसे इमिली और ट्रीटाइज ऑफ एजुकेशन, ऐसी भी बुक्स लिखी है, बट सोशल कॉन्ट्रैक्ट काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। 73 हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज एन ओरिजिनेटर ऑफ द पोस्ट मॉडर्निज्म थ्योरी। अभी ना मुझे इसका आंसर एक्चुअली को बहुत कन्फ्यूजन है। मैंने जहाँ तक पढ़ा था ना, मुझे तो लॉयटार्ड पता था, JF लॉयटार्ड, बट इसका आंसर है मार्टिन हेडिगर। जीन जैक्वेस लॉयटार्ड, मैंने उनके बारे में पढ़ा था, जो क्वेश्चन करते थे नैरेटिव्स को, ग्रैंड नैरेटिव्स रहते थे मॉडर्निटी से रिलेटेड, उसे क्वेश्चन करते थे। 74 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनएप्लीकेबल टू डिफाइन द मीनिंग ऑफ एनलाइटनमेंट। इट मीन द विक्ट्री ब्रॉट बाय द फोर्सेज ऑफ लाइट ओवर दोज ऑफ डार्कनेस। करेक्ट। यहाँ पर इनएप्लीकेबल पूछा है, मतलब कि इनकरेक्ट। इट डिड नॉट रेंज ओवर द फील्ड्स ऑफ नॉलेज विच हैड वंस बीन द प्रोविंस ऑफ द चर्च। इट इज इक्वेटेड विद द एज ऑफ रीजन। इट इज लिबरेशन ऑफ मैन फ्रॉम द हिज सेल्फ इम्पोज्ड माइनॉरिटी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आता है? 74 का बी। 74 का इट डिड नॉट रेंज ओवर द फील्ड्स ऑफ नॉलेज विच हैड वंस बीन द प्रोविंस ऑफ द चर्च, ये गलत है। 75 विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज एन अनफिनिश्ड वर्क ऑफ द एनल स्कूल ऑफ हिस्टोग्राफी। कौन सा है ऐसा वर्क? ये है ऑप्शन डी, द हिस्टोरियंस क्राफ्ट। और जो एनल स्कूल है ये किस पर फोकस करती थी? सोशल एंड इकोनॉमिक थीम थी इनकी, ये उस पर ज़्यादा फोकस करती थी। और इससे रिलेटेड ना 2-3 नाम है, जैसे कि 2 नाम का बहुत ज़्यादा चलते हैं, हर बार क्वेश्चन में आते हैं, ल्यूसन फेवरे एंड मार्क ब्लॉक। लूसन फेवरे एंड मार्क ब्लॉक, ये 2 नाम रट लो क्योंकि ये आगे जाके भी बहुत काम आने वाले हैं। इसी के साथ मैं हमारा आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। होप यू लाइक द वीडियो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, थोड़ा इसे प्रचार करो, आगे जाकर और अच्छे वीडियोज़ आने वाले हैं। तब तक के लिए नमस्ते।